I think the biggest strength is his hunger, or to not settle for anything but the best. In 17 years of cricket that he's played, he has never been to NC for any injury. Exactly आज शाम को क्या करना है, कल रेडी होने के लिए, कल 100 किया है तो आज उसको क्या करना है. All those things are planned, understood and executed to the T. इसी के तौर पर आपने अभी विराट कोहली का नाम दिया, तो आई थिंक 2013 वाज द वाटरशेड मोमेंट. देयर वाज 2013 पहले 2013 2015 नहीं, आई थिंक द स्टोरी वाज 2013 आईपीएल, जहां उन्होंने शीशे में देखा और बोला कि भाई मुझे चेंज करना है. That is true, but the shift started to happen In the game. 2015. Okay. When Basu sir went to the Indian team, and it was in Sri Lanka when Basu sir asked for I think 2 to 3 weeks of a particular regime that he wanted Virat to follow, and it was Virat who reached out to Basu sir कि यार मेरे को अलग करना है कुछ. And he said, okay, give me 2 to 3 weeks. And he started doing Olympic lifts. And then he chased the ball in Sri Lanka. And it was unbelievable what he felt. And वो एक since खाली then- स्पोर्ट्समैन ही फील कर सकता है, हाँ, क्योंकि वो तो- ट्रेनिंग का जो फायदा होता है हाँ, ना, वो बोला था कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ अलग है. वो अलग ही, वो गियर ही अलग हो जाता है. So then he never left training राइट. under that regime or under sir. And even today he has trained with me. But again, our fulcrum is when it comes to You build Virat. upon that. मतलब Yeah, बासु I सर build ने- upon that. If I am stuck somewhere, I reach out to him. Okay. And in IPL is always when we revisit everything, because Okay. they are together for हाँ, 2.5 RCB, months. yeah. वैसे I can never take the credit of Yeah. training Virat per se. I've just built upon and carried on what Shankar Basu has done with Virat, and what Virat has constantly pushed Shankar Basu to do with him. सो अगर 2015 मान ले तो आई थिंक शायद विराट 27 के थे. सो मैं उनका स्वॉट एनालिसिस आपके तौर पर जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, अगर मान लो कि उसे हम लोग फ्रॉम अ एथलेटिक फिटनेस एंगल देखें तो व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ्स, मतलब जो उनसे कम्पीट किया ही नहीं जा सकता. सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वो कहते हैं दुखती नस होती है. तो वो अगर आप कह सके, जितना आप कह सके, तो आई वुड लव टू नो कि विराट एज अ केस स्टडी अगर किसी स्पोर्ट्स साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए, देन व्हाट इज द फर्स्ट लाइन कि भाई इसकी ये स्ट्रेंथ थी, इसकी ये वीकनेस थी, हियर वर द कैप्चर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड हियर वर द थ्रेट्स. I think the biggest strength is his hunger ओके. to be the best, or to not settle for anything but the best. ओके. That is the biggest strength he has. Second thing I would say is not his weakness, but that I think it ends up being a weakness when you are a person of such a magnitude, is you are tied up with so many things mentally in a day. So it is very difficult for you to detach and constantly focus. Compartmentalize करना बहुत फोकस करना एक चीज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है with every passing year or season. Yeah. So I think that is a challenge for him, which he copes well at times, which he fights at times, which he succumbs to at times, but that is his challenge. I would say another thing is his work ethic. So in 17 years of cricket that he's played, now he's retired from 2 formats. He has never been to NCA for any injury, any niggle, anything. ऐसा नहीं कि उसको नहीं कुछ हुआ है, but ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे he has to pull out from स्पेशल प्रोग्राम लेना from cricket and go to NCA and do rehab. वैसा कुछ नहीं हुआ. इधर उधर छोटा मोटा सब हुआ है, and his work ethic or his lifestyle or his drive is so deep and strong कि उसका fitness level ही वो इधर तक लेके गया है कि कुछ होता भी है तो ऐसा होता है कि he can still manage around it. So the threshold of breaking down has gone up so many folds that even when he is struggling with something or he is facing any niggle, he's still able to find ways to play. ओके. So that is आई थिंक his- 2016 में वो मुझे हाथ ये वाला फ्रैक्चर वाला इनिंग्स याद है. वो तो देखो, वो इम्पैक्ट इंजरी है, वो इम्पैक्ट, उसको वेबिंग फटना, फ्रैक्चर होना, वो बट सब स्टिल वो ग्रिप का आपको नहीं लगता डिफिकल्टी है. But that is nothing to do with ओवरऑल फिटनेस. that is to do with his, again, the will to bear the pain, the threshold to bear pain and still play. So that is, I wouldn't say fitness, that is mental fortitude of his to just see it through. अब विराट को मैं जोकोविक के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ. उसका कारण ये है कि जस्ट लाइक हिम एंड आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर मैं वो तीनों को एक साथ बोलूं, दे नो देयर बॉडी इनसाइड आउट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मतलब वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे
एंड इफ यू आर रॉन्ग दे विल ऑल्सो टेल यू कि भाई कहाँ से आप वापस करो, कोई नया रेजिमेंट लाओ. दे आर एक्सपेरिमेंटर्स, मतलब खुद की बॉडी को पीक लेवल लेने के लिए. मैं तो आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. मैं अगर आप कह सको तो इट वुड बी ग्रेट कि हाउ ही अप्रोचेस हिज बॉडी, मतलब वो माइक्रो मैनेज करता है कि ही जस्ट delegates the responsibility to his trainers and the nutritionists. I will first tell you about awareness. Okay. Awareness के बारे में. And this in this bracket, I would also like to put Sachin Tendulkar and MS Dhoni. Okay. I have not worked with them directly, but MS Dhoni, I have interacted with him directly, and I've आप heard from him. 2020 में थे तो 21. ओके हाँ, तो तभी रिटायर हो गए थे. Mentor 2019 when he came as mentor ओके for the 21 World Cup. ओके हाँ हाँ. And also few days I've spent with him in NCA. They are very aware of their bodies. जो लोग उस सचिन पाजी के क्लोज थे उनसे मैंने सुना है कि ही यूज टू बी अवेयर. इतना अवेयरनेस था उनका कि कौन से शॉट में कौन सा मसल यूज होना चाहिए या कौन से पोजीशन में कौन सा मसल यूज होना चाहिए उतना ही यूज करते थे वो. इतना प्रिसाइज प्रैक्टिस, सिलेक्टिव एक्शन, इतना प्रिसाइज अवेयरनेस और स्पेशल अवेयरनेस अपने सराउंडिंग का, अपने बॉडी का, अपने मूवमेंट्स का बहुत कम लोगों में होता है. आपको बहुत मतलब यू हैव टू बी वेरी डीप इन योर क्राफ्ट ऑन द क्वेस्ट. वो भूख इतना होना चाहिए कि आप इतना समझ चुके हो अपने क्राफ्ट को कि यू आर ओनली यूजिंग जो नीड है उतनी ही ओवर ट्राई नहीं कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है. आई थिंक फेडरर इज आल्सो इन सेम ब्रैकेट. सो बेसिकली ऑल दिस गाइस, माइकल जॉर्डन ले लो, क्रिस्टियानो, मेसी, कोबी आल्सो माय फेवरेट, कोबी, ये सबको ले लो आप. दे हैव दिस थिंग बिकॉज वो लोग इतना डीप चले गए हैं अपने क्राफ्ट को. वो लोग एवरीथिंग दे आर अवेयर ऑफ. तो सेम वे MS धोनी इज वेरी अवेयर ऑफ उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी बॉडी, उनका पेन थ्रेशोल्ड, उनका फिटनेस, उनको क्या करना पड़ता है, उनको क्या नहीं. वो जिम भी खुद से आते, खुद का करते. वो फिजियो टेबल में कभी जाते नहीं है, मसाज कभी लेते नहीं है. he just has his thing. नेचुरल एथलीट कहते हैं वो, but he is very aware of his body. अगर आप बोलोगे कि माही भाई इसको क्या करना चाहिए तो बोलेगा भाई तू यू फिगर आउट. he might help you figure out but वो बोल नहीं पाएंगे. ओके. वैसे whereas विराट कोहली he is very different in terms of कि उसको पता है exactly कि कौन सी exercises, कौन सा programs उसके लिए वर्क करता है. इफ ही इज प्लेइंग अ T20 टूर्नामेंट तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो वनडे खेल रहा है तो क्या करना चाहिए, टेस्ट मैच खेल रहा है तो क्या करना चाहिए. अगर उसने कल समझो कि वनडे क्रिकेट खेलना है और बैक टू बैक कुछ प्रोग्राम रहे हैं उसके प्रिपरेशन में या प्रैक्टिस में, तो एग्जैक्टली आज शाम को क्या करना है कल रेडी होने के लिए, या अगर कल 100 किया है तो आज उसको क्या करना है. ऑल दोज थिंग्स आर प्लान्ड एंड अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड टू द टी. ओके. वो कुछ इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप तक वो पूरा फॉलो करता है. और वो इतना करने के बाद इट हैज बिकम हिज सेकंड नेचर. या उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटो पायलट, वो आपकी कैरेक्टर ही बन जाते हैं एक बार आपने चीज. दैट इज हिम बेसिकली. सो देयर अवेयरनेस इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल. मैंने आपको क्वेश्चन में 2013 मतलब 15 करेक्टेड 2015 कहा था. वो कारण ये था कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था एंड उसमें वो वाटरशेड मोमेंट दिख रहा था कि एक छोले भटूरे वाला रात को इतना डाइट रिस्ट्रिक्टिव उसने कर दिया है कि भाई उसको पिलो कवर्स खाने की क्रेविंग होती थी फिर भी वो सेल्फ कंट्रोल कर सकता था. सो दिस इज लाइक सेंट लाइक थिंग, मतलब आप इतना सेल्फ कंट्रोल कर पाओ अपने डिजायर्स का. और पंजाबी है भाई, पंजाबी लोगों का एक क्रेविंग अलग ही होता है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी होती है, उनका एनवायरमेंट भी वैसा होता है. सो दैट वाज वन थिंग आई थिंक. क्योंकि मैंने अगेन जोकोविक का एग्जांपल इसलिए बिकॉज ही वाज अपब्रिंग इनटू अ बेकरी. उनके मम्मी पापा बेकर्स थे और उनके लिए बीइंग टेस्टेड एज अ ग्लूटेन सेंसिटिव थिंग, इट वाज अ बिग थिंग. मतलब दूध वाले के बेटे को आप कह रहे हो कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसा हो गया. सो दैट टेक्स अनदर अमाउंट ऑफ करेज टू गो अगेंस्ट योर ओन व्हाट यू से द कोहोर्ट, कि आप जिस ट्राइब में पले बड़े हो उसी का आपको मतलब एंटी जाना हो, तो इट इज लाइक नेक्स्ट बिग थिंग. सो वो इसलिए मैं शेयर कर रहा था. नाउ कमिंग टू द वाटरशेड मूवमेंट, आपने कहा कि बासु सर ने जो आपके मेंटर हैं उन्होंने कुछ ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि पावर और स्ट्रेंथ पर ज्यादा उन्होंने तवज्जो दिया. तो उसके बारे में बताइए कि उसके पहले क्या कल्चर था और उन्होंने क्या बदला कि उससे पूरा कल्चर इट शिफ्टेड टू दिस वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल. नहीं, वो दैट इज रॉन्ग टू से. ओके. और वो परसेप्शन बना गया है. ओके. हाँ, मतलब मार्केट मीडिया में कि सब लोग ओलंपिक लिफ्टिंग करते हैं या पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया. ऐसा कुछ नहीं हुआ. एटलीस्ट मुझे नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जब मैं
व्हेन आई जॉइन, मैंने काम करना चालू किया टीम के साथ, तो आउट ऑफ 28 या 30 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स 5 या 7 लोग लिफ्टिंग करते थे, ओलंपिक लिफ्टिंग या डेरिवेटिव्स ऑफ ओलंपिक, पार्ट ऑफ ओलंपिक लिफ्टिंग। बाकी सब यूजुअल नॉर्मल ट्रेनिंग करते थे। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है विराट और वो ओलंपिक लिफ्टिंग और बासु सर और वो सब की वजह से, देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट, बट दैट इज अ लॉट टू डू विद विराट कोहली। अगर वो नहीं होता और वो हंगर नहीं दिखाता और उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो वो कल्चरल शिफ्ट या द होल फिटनेस रिवॉल्यूशन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम में नहीं आता। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रोच ही पूरा अप्रोच चेंज हो गया, पूरा अप्रोच चेंज हो गया। पीपल स्टार्टेड टू लुक एट मोर फिजिकल एस्पेक्ट, फिटनेस, हाउ फिटनेस कैन इम्पैक्ट क्रिकेट। जैसे आप मानोगे नहीं, हम लोग जब बोलते थे कि यार फिटनेस खाली फिजिकल एबिलिटी नहीं है, व्हेन यू आर इन योर 80s 90s स्कोरिंग दोज हंड्रेड्स, आप जब डबल्स लेते हो बार बार या थके हुए हो, अंडर फटीग डिसीजन मेकिंग लेना होता है, इफ यू आर अ फिटर इंडिविजुअल, अगर आप फिट बंदे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग भी क्लैरिटी के साथ होता है। अंडर फटीग डिसीजन मेकिंग, वो अनफिट बंदे का और फिट बंदे का आसमान जमीन का फर्क है। आई थिंक चेजर इसलिए कहते हैं। सो द कैलकुलेशंस, द डिसीजन मेकिंग, तो वो सब बहुत मैटर करता है। एंड एट द हाईएस्ट लेवल स्किल वाइज मोर और लेस सब लोग 19-20 रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो यू विल हैव टू फाइंड एरियाज टू आउटडू और ओवरकम द चैलेंजेस देयर। तो जब सब स्किल वाइज सिमिलर रहते हैं, तो आप अलग अलग एंगल ढूंढने पड़ेंगे ओपोनेंट्स को बीट करने के। तो एक चीज हो गया फिटनेस, एक चीज हो गया कि आप शेयर हंगर और विल लाओ, और एक चीज हो गया डिसीजन मेकिंग अंडर फटीग। व्हेन बोथ टीम्स आर टायर्ड, बोथ टीम्स आर अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर, हु हैज मोर क्लियर माइंड, हु हैज मोर क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो दैट इज ऑल्सो वेयर फिटनेस का रोल है।